राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे आज के चीफ गेस्ट आदरणीय राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट्स AI and Tech Summit 2026 presented by Thapar Institute of Technology and Engineering। इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी ब्रजमोहन जी से और जगमीत सर से कि वो एस्कॉर्ट करते हुए साथ में आए स्टेज पर। जोरदार तालियां एक बार हमारे चीफ गेस्ट के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और हम वंदे मातरम के पावन स्वरों के साथ हमारे चीफ गेस्ट श्री गुलाब चंद कटारिया जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि श्री गुलाब चंद कटारिया जी, गवर्नर पंजाब, एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़। सर हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप पहुंचे हैं हमारे इवेंट में और इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे फेलिसिटेशन सेरेमनी की। जितने भी हमारे मेहमान आज पहुंचे थे उन सबको हम सम्मानित करेंगे और इसके लिए मैं शुरुआत करूंगी। The Thapar Satellite Program is an in-house satellite initiative developed by students and faculty of Thapar Institute of Engineering and Technology, mentored by Dr. A. Sivathanu Pillai of BrahMos Air Force
and former ISRO scientist Dr. M. Krishnaswamy. The project focuses on weather monitoring and tracking greenhouse gas emission from stubble burning, agriculture and industrial waste. Developed by 100 plus students and 7 faculty members over 3 years, the program is also actively collaborating with the Government of Punjab for environmental monitoring through satellite data sharing. THAPRSAT, the student satellite project of Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala, reflects innovation, research excellence, and the spirit of scientific advancement driven by young minds. Before inviting them on the stage, let's have a look at their work, everybody. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause for Manit Sarkar, Twinkle Sharma and faculty in charge Dr. Mamta Gulati to please come upon the stage and receive their honor. Please put your hands together for Manit Sarkar, Twinkle Sharma and Dr. Mamta Gulati. तालियां बरकरार रहनी चाहिए। इतना खूबसूरत काम इन बच्चों के द्वारा किया गया है अपने अध्यापकों के सुपरविजन के अंडर। Thank you so much. Moving forward to the next felicitation we are giving to, with a rich legacy of excellence in engineering, innovation and research, Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala, joins us as the presenting sponsor of the News 18 Network AI and Tech Summit 2026. Let's give a huge round of applause for Professor Padma Kumar Nair, Professor Ajay Batish, Dr. Gurbinder Singh and Mr. D.P. Goyal. Let's give a huge round of applause for them and I invite them on the stage to kindly receive their honor. Thapar Institute of Engineering and Technology, ladies and gentlemen. And redefining smart mobility, Bharosa Group joins us as the powered by partner of the News 18 Network AI and Tech Summit 2026. Their growing presence reflects a strong vision towards technology-driven and trusted transportation system. Please put your hands together, ladies and gentlemen, for Mr. Gaurav Rana Sukhija, founder and chairman, Bharosa Group, Mr. Hardeep Mahal, Bharosa Franchisee Tri-City, and Mr. Manoj Arora, Bharosa Franchisee Rajasthan. I welcome them on the stage to receive their honor. Please put your hands together for Bharosa Group. Thank you so much. Moving forward, we now welcome Dr. Krishna Kumar, Medical Director and Head of Orthopedics, SKR Hospitals and Trauma Center, Pathankot, for his valuable participation as a panelist in MedTech Revolution, transforming the future of healthcare. With over 17 years of expertise on orthopedic and trauma care, he continues to contribute through excellence in healthcare and patient care. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Dr. Krishna Kumar. Thank you, sir. Moving forward, now I would like to welcome on stage Dr. Manoj Vadhva, Chairperson and Executive Director, Elite Institutes of Orthopedics and Joint Replacement, Chandigarh, for his valuable participation at the News 18 Network AI and Tech Summit 2026. Known for his expertise in orthopedics and joint replacement, he continues to contribute significantly towards advanced patient care and medical excellence. Please put your hands together for Dr. Manoj Vadhva. Thank you, sir. Moving forward,
Known for its contribution towards higher education, research and industry-oriented learning, Guru Kashi University, Talwandi Sabo, Bathinda continues to impart future-ready talent across disciplines. Please put your hands together for Dr. Balraj Singh, Vice Chancellor, and Ms. Loveleen Sachdeva, Deputy Director, Public Relations, Guru Kashi University, to receive their honor. Please put your hands together for Kashi University, Talwandi Sabo, Guru Kashi University, Talwandi Sabo, Bathinda. Thank you. Moving forward, known for delivering modern residential and commercial spaces with quality infrastructure and contemporary design, Dream Heights, Bathinda and Ludhiana continues to create value-driven real estate developments in Punjab. Ladies and gentlemen, I feel honorable and privileged to call upon stage Mr. Sunil Bansal and Mr. Rampal Mafik, Directors Dream Heights, to kindly come upon the stage and receive their honors. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Dream Heights. Thank you so much. We now welcome Dr. IPS Oberoi, Chairperson Orthopedics, Artemis Hospital, Gurugram, for his valuable participation at the News 18 Network AI and Tech Summit 2026. Renowned for his excellence in orthopedic care and advanced joint replacement surgeries, he continues to inspire the healthcare fraternity through his contribution and expertise. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Dr. IPS Oberoi. Thank you. Recognized for its commitment towards innovation and industry-focused learning, Lamrin Tech Skills University, Punjab continues to shape future-ready talent through technical skills, education and academic excellence. Please put your hands together for Mr. Sachin Jain, Executive Director, Marketing and Corporate Relations, and Dr. HPS Dhami, Executive Dean, Engineering and Technology, Lamrin Tech Skills University. Please put your hands together for Lamrin Tech Skills University, Mr. Sachin Jain and Dr. HPS Dhami. Thank you so much, sir. Moving forward, known for its commitment towards quality education and academic excellence, Maharaja Agrasen University, Baddi, continues to contribute towards shaping future-ready learning and innovation. Please put your hands together for Shri Suresh Singla, Chancellor Nominee, Maharaja Agrasen University, Baddi, and receive his honor. Please put your hands together for Maharaja Agrasen University, Baddi and Shri Suresh Gupta ji. Moving forward, recognized as India's leading AI-powered university, CGC University Mohali contributes to drive innovation, future-ready education and technological excellence. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Dr. Vinay Goyal, Vice Chancellor, CGC University Mohali, to receive his honor on the stage. Ladies and gentlemen, Vice Chancellor, CGC University, Dr. Vinay Goyal. Please put your hands together, everybody. Thank you so much, sir. Moving forward, known for his inspiring journey from humble beginning to remarkable success, he left a secure government job career to empower Punjab's youth through quality education. Today, Aurora Classes Bathinda stands as a symbol of excellence, helping thousands of students achieve their dreams and recently celebrating over 800 selections in the Punjab Police recruitment. Please join me in warmly welcoming Mr. R.K. Arora, founder of Aurora Classes Bathinda, to the stage. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Aurora Classes and Mr. R.K. Arora. Thank you, sir. Thank you. Moving forward, with a journey that began in 2014 in the international education sector, Mr. Navpreet Singh Sidhu has successfully expanded across education, media, entertainment and real estate. Recognizing the growing demand for AI-driven creative skills, he founded MAC Bathinda to impart students in animation, VFX, filmmaking, digital media. Through his vision and leadership, he continues to create new opportunities for aspiring professionals in India and abroad. Please put your hands together for Mr. Navpreet Singh Sidhu. Moving forward, recognized for its commitment towards innovation-driven education and academic excellence,
Indo-Global Group of Colleges, New Chandigarh, continues to shape future-ready talent and industry-focused learning. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Manav Singla from Indo-Global Group of Colleges. He is the CEO of Indo-Global Group of Colleges, New Chandigarh. Mr. Manav Singla, everybody. Thank you so much, sir. We are extremely grateful to our chief guest, Shri Gulab Chand Kataria ji, and I'm extremely thankful to our dignitaries. Now I would like to call upon stage Mr. Gaurav Shukla, my colleague, for the next session, the last session of the day, Youth Empowerment and Artificial Intelligence. Please put your hands together for Mr. Gaurav Shukla, everybody. Over to you, Gaurav. थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले आपका न्यूज 18 की स्टेज के ऊपर। धन्यवाद आपका न्यूज 18 का। मैं चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले देखिए, अनुभव और तजुर्बा बहुत मायने रखता है, और जो हमारे साथ खास मेहमान हैं उनका तजुर्बा प्रशासनिक सियासत में से लेकर राजभवन तक इस समय पंजाब के खूब काम आ रहा है। राजस्थान में रहते हुए पक्ष विपक्ष, विधानसभा, लोकसभा और उसके बाद असम और अब राजभवन पंजाब का। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हमने AI टेक समिट में आपको निमंत्रण दिया, आपने स्वीकार किया और हम बातचीत कर रहे हैं। मैं पंजाब और बाकी मुद्दों के ऊपर जाऊंगा, लेकिन जो मैंने एक बहुत लंबा आपका करियर की बात की, इस समय टेक्नोलॉजी गवर्नेंस को कैसे प्रभावित कर रही है, यह सवाल मैं उस समय पूछ रहा हूं जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस दौर में हमें संयम से काम लेना होगा। पेट्रोल डीजल को लेकर वर्क फ्रॉम होम की उन्होंने बात की है, लगभग 7 अपील उनकी तरफ से की गई। आज की डेट में टेक्नोलॉजी, AI गवर्नेंस के ऊपर किस तरह से काम कर रही है? देखो, मैं सोचता हूं कि पहले हमको जितना मैन पावर और जितना आदमी लगाना पड़ता था जी, आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और बाकी जितने डेवलपमेंट हुए हैं जी, उनसे हम अकेले व्यक्ति भी कई काम एक साथ कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूं कि दुनिया की जिस प्रकार से चाल बनी है उसके साथ ही हमको कदम बढ़ा करके आगे बढ़ना पड़ेगा जी। और मैं सोचता हूं कि विकास का ये जो पहिया है वो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि विकास ही देश के भविष्य का आधार बनता है। तो मैं सोचता हूं दुनिया में जो कुछ भी हलचल हो रही है उसका प्रभाव हमारे पर हुआ बिना तो रह नहीं सकता। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जिसके कारण से हर देश के सामने रहता है, पेट्रोल डीजल की जो कमी है वो सारी दुनिया महसूस करती है। कुछ ही लोगों के पास इसका है। तो मैं सोचता हूं कि संकट है तो उसको फेस करने की भी भारत में ताकत है। बिल्कुल। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अन्न की कमी थी, PL 48 का गेहूं अमेरिका से आता था जी, और भारत के जीते हुए भाग को लौटाने के लिए शर्त लगा दी थी कि मैं PL 48 का गेहूं बंद कर रहा हूं जी। पर देश ने इसके बारे में चिंता नहीं की, देश की जनता को जगाया और सोमवार का व्रत किया और अपने किसानों को भी जय जवान के साथ जय किसान का नारा देकर के उनकी देशभक्ति को जगा करके परिश्रम की ओर दी, तो अन्न की कमी निकाल दी। बिल्कुल। अभी हमारे सामने जिस प्रकार से संकट आया है, मैं सोचता हूं देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जितना पेट्रोल और डीजल कम से कम किया जा सकता खर्च उसको करने का प्रयास करें। जब देश पे संकट आता है और हर व्यक्ति अगर मान लो महीने में 2 लीटर पेट्रोल भी बचा देता है तो इस जनता इतनी बड़ी जनसंख्या है कि मैं सोचता हूँ आसानी से हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। इसका मुकाबला अकेले सरकार नहीं करेगी, हर व्यक्ति को इस समस्या को समझ करके कम से कम उपयोग करते हुए अधिक से अधिक काम कैसे किया जाए वो किया जा सकता है और कर रहा है देश। तो मैं सोचता हूं कि देश की समस्या किसी व्यक्ति और पार्टी की समस्या नहीं होती, वो संपूर्ण देश की समस्या होती है। उसको समझ करके अगर उसके अनुसार जनता भी अपना सहयोग करेगी और उस काम में सहयोगी हो जाएगी तो परेशानी
आसानी से पार कर जाएगी। बिल्कुल, और इसका असर नजर भी आया, वो चाहे आपके ऑफिस की बात करें, हम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं, कोई बाइक पे हमें नजर आया, कोई अलग अलग तरीके से। मैं एआई के ऊपर थोड़ा सा एक सवाल और लेना चाहूंगा आपसे। इनफैक्ट आप लाल गेहूं की बात कर रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो जिक्र किया था। आप खुद एआई यूज करना शुरू किया आपने? आप खुद आपकी पर्सनल लाइफ में आजकल बहुत स्क्रोलिंग फोन के ऊपर होती है, आप एआई का कोई इस्तेमाल आपने शुरू किया? मैं करता हूं, पर मैं इतना ज्यादा इसकी जानकार नहीं हूं, पर मैं अपने स्टाफ से सहयोग लेकर के बराबर उस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं सोचता हूं कि उसका लाभ भी मुझे मिल रहा है। बहुत आसानी से मुझे सब प्रकार की जानकारी एक ही जगह आसानी से मिल जाती है। मुझे कोई भी किसी भी प्रकार की बात करनी हो तो मुझे एक तरह से उसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको मुझे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता है। मैं सोचता हूँ पहले मुझे जितना किताबें पढ़ करके अपने आप को तैयार करना पड़ता था, आज की तारीख में बना बनाया मटेरियल जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तुरंत आ जाता है, और उसके कारण से मैं देश और दुनिया की जानकारी जो मुझे नहीं थी वही मुझे बहुत आसानी से। तो मैं सोचता हूँ इन साधनों का उपयोग अगर हम समाज और देश हित में करेंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन जाएगा, और अगर इसका दुरुपयोग करना शुरू करेंगे तो यही हमारे लिए खतरे का आधार भी बन सकता है। जी चलिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, पंजाब की ओर रुख करता हूं। मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में जिक्र किया कि आप राजस्थान में किस तरह से अलग अलग पदों पर रहे, लेकिन पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पिछले लगभग 2 साल में आप राजभवन में तो थे ही, लेकिन पंजाब के अलग अलग जिलों में भी नजर आए, और एक बहुत मुद्दा जो चर्चा में पंजाब में बहुत लंबे टाइम से रहा है, ड्रग्स का, उसको लेकर आपने काम भी किया, पैदल यात्रा भी निकाली। 2 साल के बाद आप आज की डेट में पंजाब में ड्रग्स को किस स्थिति में देखते हैं, किस पड़ाव पर आप देखते हैं? देखो, मैं जो है मेरे से पूर्व जो गवर्नर थे उन्होंने हमारी बॉर्डर की सारी विलेज कमेटियों का गठन किया हुआ था जी, और बॉर्डर की हमारी फोर्स का भी और लोकल प्रशासन के साथ जुड़ करके बॉर्डर की हिफाजत कैसे की जा सकती है, तो उसको मैं व्यक्तिगत रूप से उन जिलों में मैं गया हूं और वहां की विलेज कमेटी की मीटिंग मैंने की थी। तो अब मुझे पहली बार अपने आप को थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ जब उस विलेज कमेटी में मेरी माताएं बहनें जो है ना एक खड़ी हुई, उन्होंने कहा गवर्नर साहब आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें और कुछ देवो न देवो कोई चिंता की बात नहीं, पर हमारे बच्चों को नशे से बचा लो, नहीं तो हमारे बच्चे को हमें ड्रग ला करके देनी पड़ती है। कई बार हमारा बच्चा हमारे पर हाथ उठाता है और परिवार एक तरह से तो बहुत संकट में आ गया। तो आप और कुछ विकास नहीं हो तो कोई चिंता की बात नहीं, आप इसके बारे में प्रयत्न करो। तो एक जगह नहीं, मुझे 5 जिलों में से 3 जिलों में इस प्रकार की बात सुनने मिली। मुझे लगा कि ये समस्या यहाँ बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है और इससे हर व्यक्ति जो है ना, हर माँ बहन परेशान है, तो इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो मुझे सुखविंदर सिंह जी ने एक बार मुझे पैदल यात्रा के लिए बुलाया था, वो ड्रग के खिलाफ अपना अभियान चल रहा है 3 साल से जी। तो मैंने कहा यार आपकी इस ड्रग की यात्रा में 2 दिन मैं भी आपके साथ पैदल चलूंगा। तो मैं सोचता हूँ जो फौजा सिंह जी थे हमारे जो 113 साल के, उनके घर से ही मुझे उस पैदल यात्रा में निकलने का मौका मिला जी। तो मुझे लगा कि जनता का जिस प्रकार से इस समस्या के बारे में दर्द है वो निश्चित रूप से सहयोग के रूप में एक आंदोलन के रूप में बन रहा है। तो मैं सोचता हूं अगर पैदल चलेंगे तो सामान्य हर व्यक्ति से हम संपर्क में आएंगे, उनको भी थोड़ा सा इसे जोड़ सकेंगे। तो मेरा ये मान्यता है कि सरकार चाहे कितना भी प्रयत्न करे 100% सफल नहीं हो सकती। और इस सरकार ने भी मार्च 2025 से बराबर कोशिश की है, कानून की दृष्टि से वो जितनी 63,000 गिरफ्तारी मैं सोचता हूँ किसी स्टेट में नहीं होगी जो पंजाब में की है। उन्होंने कानून की दृष्टि से कोशिश की, लेकिन मेरी यह मान्यता है कि कानून कभी किसी भी समस्या का स्थायी निदान नहीं है जी। कानून तो 302 का पहले भी बना हुआ है पर मर्डर नहीं रुकता है। बिल्कुल। अब इसके लिए समाज की जागृति और जनता की जागृति, और जनता इस समस्या को अपनी समस्या समझ करके जब हम सब सहयोगी बन के आएंगे। तो मैंने सारे वाइस चांसलर को अपने यहाँ राजभवन में बुलाकर बातचीत, मैंने सारे धर्म गुरुओं को बुला करके उनसे बातचीत की। मैंने कहा ये आंदोलन राज्यपाल का आंदोलन नहीं होना चाहिए, ये आंदोलन जन आंदोलन कैसे बने, इसमें हम सब लोग शरीक। और मेरी मान्यता यह है कि अब बाकी जगह अगर देर से होगा तो चलेगा, एक बार विद्यालय और महाविद्यालय को
हम अगर इसे ड्रग से मुक्त कर देते हैं और उसके अपने अपने कैंपस में बोर्ड लगा देते हैं जी। कि हमारा ये जो है ना विद्यालय या महाविद्यालय ड्रग फ्री है, जी। हमारा ये मोहल्ला ड्रग फ्री है, हमारा ये विलेज ड्रग फ्री है, तो मैं सोचता हूँ ये आंदोलन और इसका प्रभाव हुआ है। मैं अभी सेकंड बार जब गया हूं तो लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि पहले जिस तरह से हर चौथे पांचवी दुकान पे मिल जाता था, वो कम से कम आज की तारीख में काफी उस पर कंट्रोल हुआ। लेकिन जी। आज भी ड्रग आ रहा है, इसको ना नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान जो ड्रोन के माध्यम से हमारे यहाँ ड्रग डालता है, हमने कई ड्रोन नष्ट भी किए हैं, हमने उनको सीज भी किया है, लेकिन अभी तक उसको 100% रोकने में हम सफल नहीं हुए। जी। केंद्र सरकार ने भी हमको एंटी ड्रग का ऑपरेशन करने के लिए सामान दिया है, राज्य सरकार ने भी 10 करोड़ रुपया दिया है, जी। लेकिन हमारी बॉर्डर इतनी 553 किलोमीटर है, इस सारी बॉर्डर को, और उन्होंने भी टेक्नोलॉजी से ड्रोन की प्रकार बदले हैं। पहले बड़े आते थे जो आसानी से दिखते थे, गिरा सकते थे, जी। पता लगता था। अब उन्होंने भी तरह तरह से नए नए ड्रोन निकाल कर जी। एक तरह से वो आता है, तो वो वास्तव में अभी हम रोक नहीं पाए हैं। पहले वो 1-2 किलोमीटर में आता था, अब वो 50 किलोमीटर आगे जाकर के भी वो बिल्कुल। डाल देता है, और वो उसकी आवाज सुनाई देती है पर आसमान में वो दिखाई नहीं देता है। तो मैं सोचता हूँ इसमें सफलता हमको जनता ही हमारी मदद करेगी, क्योंकि आखिर उसको कोई न कोई तो उठाता है, ऐसे ही तो डाल के नहीं जाता है। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं उसकी लिंकेज है, और उसको पकड़ने में स्थानीय लोग अगर ईमानदारी से हमारी मदद करेंगे तो हम इसको दोनों तरफ से रोकने में सफल हो जाएंगे। सर, मेरा सवाल यही था कि आप स्थिति ये देखते हैं कि बेहतर हुई है स्थिति पहले से ड्रग्स को लेकर। आपका ये मानना है कि पंजाब में आज से 2 साल पहले जब आप आए बतौर राज्यपाल और आज 2026 में आप अंतर देखते हैं, आपको लगता है कि नशा कम हुआ है? निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं, कई हमारी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है जी। वो भी अपने अपने कैंपस में, अपने अपने छात्रावास में इसका प्रयास कर रहे हैं, और उसमें हम विद्यालय स्तर पर और बच्चों के स्तर पर थोड़ा सा बेस्ट अच्छी पोजीशन में आए हैं। और जितने भी ड्रग एडिक्शन सेंटर जी। हैं उनको भी हमने वेल इक्विप किया, ताकि वहां से निकलने वाले बच्चे को रोजगार चाहिए। केवल नशा छुड़ाकर आप उसे छोड़ दोगे तो उससे आपकी सफलता नहीं मिलेगी। तो हमने कई ऐसी इंडस्ट्री को भी इसके साथ जोड़ करके वहीं उनको ट्रेनिंग करके उनको रोजगार से भी जोड़ने का प्रयास करें। तो अब तक हमने लगभग 2000 से अधिक लोगों को जी। रोजगार से भी जोड़ने का प्रयत्न किया। तो एक तरह से सब प्रकार से प्रयास करना पड़ेगा, केवल एक क्षेत्र में चलने से इस समस्या का निदान कोई स्थायी तो होने की अभी संभावना नहीं है, पर कम जरूर किया जा सकता है। आप युद्ध नशा विरुद्ध एक मुहिम पंजाब सरकार की तरफ से चलाई गई, आपने एक बार उसकी प्रशंसा भी की। आपको लगता है कि वो सही ट्रैक के ऊपर है, सक्सेसफुल हो रही है या हुई है? उसका 2 पड़ाव ऑलरेडी सरकार कर चुकी है। देखो, सरकार ने भी, मैं जिस कारण मार्च के बाद में जिस प्रकार से एक्टिव हुई है, उसकी जो मशीनरी है वो लोकल लेवल पर भी एक्टिव हुई है, तो उसके कारण से हमको सफलता मिल रही है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा क्या है कि ये ड्रग तब तक नहीं रुक सकती जब तक प्रशासन और पुलिस दोनों सक्रिय रूप से ईमानदारी से इसको अपना आंदोलन नहीं बनाएंगे। तब तक हम केवल और केवल, मतलब ये 2 एजेंसी के बिना तो ड्रग आ ही नहीं सकती। अगर ये दोनों ईमानदारी से काम करना शुरू करें तो मैं सोचता हूं इसमें बहुत आसानी से कंट्रोल हमारा हो जाएगा। मैं ड्रग्स पर एक आधा और सवाल लेना चाहूंगा। आपने बहुत अलग अलग जिलों में जाकर, खासतौर पर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है हमारे, आपको लूप होल पता लगा कि आपकी अधिकारियों से भी बात होगी कि कहां पर प्रॉब्लम है? एक तो है कि ड्रोन के जरिए धरा गया, यहां से किसी ने सप्लाई करना था, आगे चला गया, लेकिन जो नशा है कई बार पंजाब में बिल्कुल अलग अलग जगहों से बहुत बड़ी मात्रा में बरामद किया जाता है, बिल्कुल पंजाब के आप कहिए कि दूसरे कोने तक पहुंच जाता है, 300-400 किलोमीटर। तो लोग सवाल उठाते हैं कि इतनी दूर से कहां आ गया? बॉर्डर था, ठीक है, अमृतसर या फिर गुरदासपुर पठानकोट में कहीं था, लेकिन इसकी बरामदगी हो रही है बिल्कुल चंडीगढ़ के जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर। आपको लगता है कि प्रशासन उन लूप होल्स तक पहुंच गया जहां से इसकी पूरी सप्लाई चेन को तोड़ा जा सकता है? देखो, ईमानदारी से यहाँ बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया जी। ये पकड़े जाते हैं वो गरीब लोग जो केवल 10-20 हजार के लिए इधर से उधर ले जाने का प्रयास करते हैं। सच में जब तक अपन इसका जो मेन सोर्स पकड़ करके उसको दबाने में सफल नहीं होंगे तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी। मेरी ऐसी मान्यता है
कि किसी गरीब बच्चे को 10-20 हजार में जो इधर से इधर ले जाने का काम करा अपने पेट भरने के लिए, उसका सोर्स का उपयोग तो करो, लेकिन उसे इतनी सजा मत दे दो उसका परिवार बिल्कुल ही जो 10-20 हजार कमा करके पेट चला रहा वो भी खत्म हो जाए। जी। उसका उपयोग करो और उन बदमाशों को पकड़ो जो इस धंधे में करोड़ों रुपया कमाने का प्रयास करें। जब तक आप ये डॉन नहीं मरेंगे तब तक आप केवल छोटे मोटे को गिरफ्तार करके अपनी गिनती भले ही पूरी कर दो, लेकिन इस पर काबू नहीं पा सकते। काबू प्राप्त तभी होगा जब आप बड़े से बड़े लोगों को इनका सोर्स का उपयोग करके वहां तक पहुंचने का प्रयास करिए और फिर उसको पकड़ करके ईमानदारी से उनको जेल में डालिए। सामान्यतः जेल में आपको जितने लोग मिलेंगे वो सामान्य परिवार के लोग मिलेंगे जो केवल इस धंधे के आधार पर 10-20 हजार रुपया महीना कमाता है, लेकिन जो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और इस धंधे के कारण से एक तरह से आप और सबको एक तरह से इस देश को नष्ट करने में सबसे ज्यादा उनका है, क्योंकि कोई ड्रग डालता है तो ऐसे ही हवा में डाल के तो नहीं जाता है, कोई इनको उसको उठाने वाला मिलेगा, किसी न किसी सोर्स से आधार पे पहुंचाने का मिलता है। तो मैं सोचता हूं वहां तक पहुंचने के लिए लोकल लोगों का जितना सहयोग आप लेना चाहते हो उसको लेने का मैकेनिज्म बनाओ, ताकि उस गांव को पुरस्कृत करो, उस व्यक्ति को पुरस्कृत करो जिसने आपको सूचना दी है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करो, उसको एक कॉन्फिडेंस जगाओ कि तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं होगी। अब जाकर के जनता खुल करके इस समस्या के सामने आएगी। मैं आगे बढ़ता हूं सर। 2 साल जब पहले आपने आगे राज्यपाल के तौर पर कार्यभार संभाला, उससे पहले पंजाब में 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी थी। 22 से लेकर 24 तक राजभवन और मुख्यमंत्री हाउस के बीच बहुत टकराव की स्थिति रही है, अलग अलग मुद्दों को लेकर, वो चाहे सेशन को बुलाने की बात हो या कोई बिल जो वहां पर जाकर अटक जाते थे। लेकिन आपके आने के बाद ये चीजें कम हो गई या खत्म हो गई, मैं सही शब्द का इस्तेमाल करूं, आपने ऐसा क्या किया? मेरी ऐसी मान्यता शुरू से रही है। मैं राजनीति में बहुत सामान्य परिवार से आकर के रहा हूं जी। मतलब क्या है कि समस्या बने नहीं, वो अगर बातचीत का कोई माध्यम बने तो मैं सोचता हूं समस्या को कम किया जा सकता है। तो मेरे को जब कभी भी इसे लगा कि मेरी राय भिन्न है, उनकी राय भिन्न है, तो मैं उनको ही बुला लेता हूं। मैंने कहा या तो आप मुझे कन्विंस कर दो या मैं आपको कन्विंस करता हूं, और जो सही होता है उसको स्वीकार कर लो, उसमें जिद नहीं करो। तो अधिकांश समस्याएं आई जरूर थी लेकिन सेटल्ड हो गई। मैं तो ऐसा नहीं है, और मैं कोशिश करता हूं कि चाहे वो किसी भी तरफ से आए, लेकिन समस्या का समाधान करने का सबसे अच्छा साधन है आप आपस में बैठो। बैठना शुरू करोगे समस्या का समाधान भी होगा और व्यक्तिगत जो दूरियां है वो दूरियां कम से कम हो जाएगी, तो आदमी खुल करके भी बात कर सकेगा और समस्या का समाधान। तो मैंने अभी तक कोशिश ये की कि केवल और केवल मुख्यमंत्री से नहीं, सामान्यतः जो किसान आंदोलन है या और तरह के भी आंदोलन है, मैंने उनको स्वयं को बुला लिया। मैंने कहा आप बताओ मुझे, मेरे द्वारा आपकी समस्या का हल क्या हो सकता है, आप मुझे सुझाव, और नियम के तहत मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से करूंगा। आपके मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात होती है कभी? क्या वो उनका फोन आता है या कैसे? कई बार आती, या पूरे जो प्रोसेस है उसके जरिए ही बात होती है? कई बार बात होती है, कई बार वो व्यक्तिगत मैंने उनको चाय के लिए बुला करके भी बैठ करके बातचीत की। जब कभी भी ऐसी समस्या सामने दिखी कि भाई दोनों क्या दो कॉर्नर पे जा रहा है मामला, तो मैं तो उनको बुलाता हूं। मैंने कहा भी आप मुझे इसके बारे में समझाओ, मेरे दिमाग में ये है कि इसमें ये नुकसान होने की उम्मीद है, आप इसको कैसे समझते हो? तो मैं सोचता हूँ समस्या का समाधान निकला है। कभी कभी रहता है उनका पार्टी एंगल अपने हिसाब से रहेगा, जरूरी नहीं मैं उनको इतना प्रेस नहीं करता हूं कि वो अपनी पार्टी लाइन को छोड़ करके मैं जैसा कहता हूं वैसे ही मान लो, ऐसी मैं जिद भी नहीं करता हूं। पर मैं कोशिश करता हूं कि उनको जितना माइंड कम किया जा सकता है, उसका प्रेशर जितना कम किया जा सकता है, आप हल निकाल लेते हैं और बड़े प्रेम से करते हैं। सामान्यतः मैं बुलाता रहता हूं, कभी न कभी कोई न किसी पार्टी के माध्यम से, किसी खाने के माध्यम से, कभी चाय के माध्यम से, कभी किसी फंक्शन के माध्यम से। एक तरह से जो दूरियां हैं वो कम से कम हो, ताकि हमारा व्यक्तिगत संबंध जो है ना, पारिवारिक संबंध बन जाए। मैं एक बिल की बात करता हूं जो हाल ही में आपने जिसके ऊपर साइन किया। 13 अप्रैल को एक बिल पेश किया गया बेअदबी को लेकर, और उसके बाद मुझे लगता है कि 4 या 5 दिन में आपके पास आया, आपने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए और वो कानून बन गया। फिर आपकी एक लुधियाना में मुलाकात होती है जथेदार साहब और एसजीपीसी के अध्यक्ष के साथ। आपने वहां पर एक स्टेटमेंट दी जिसमें आपने जिक्र किया कि हाँ हम इसके ऊपर विचार करेंगे।
तो सर आपने अभी तक विचार उसके ऊपर किया, क्या स्टेटस है उस पूरे बिल को लेकर, क्योंकि वो आपके हस्ताक्षर तो ऑलरेडी हो गए। मैंने उस बिल को देखा था, तो उसमें क्या है कि धार्मिक भावनाओं का कोई तो भी अपमान करता है, कुछ भी करता है, वो केवल और केवल एक धर्म का मामला नहीं है। वो बिल तो केवल एक धर्म के लिए ही था। जी। मैं सोचता हूँ किसी भी धर्म का इस प्रकार का अपमान करने का अधिकार किसी को भी नहीं होना चाहिए। मैंने उनको यही राय दी कि अच्छा हो कि आप इसमें और इसका एरिया बढ़ाए। जी। तो लेकिन जब मैं उनसे मिलने गया था तो उन्होंने कुछ उसमें खामियां बताई थी। उस खामियों के बारे में जरूर मुझे लगा था कि भाई इसको फिर से देखना चाहिए। जी। क्योंकि कानून है, कानून जिसके लिए है उसको भी अगर कोई इसमें से दुविधा आ रही है तो समझने की आवश्यकता है। जी। तो मैंने उनको विषय को समझाया और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को बुलाकर, जी। ऐसे तो मैंने जो उन्होंने मुझे मेमोरेंडम दिया वो मैंने पूरा लिख करके उनको भेजा कि इस बारे में फिर से आप एक बार देखो कि अगर इसके कारण से किसी को भी हर्ट हो रहा है तो क्या उसको कितना कम किया जा सकता, कैसे ठीक किया जा सकता, देखिए। आपने जवाब मांगा है सरकार से, जो आपके पास एक मेमोरेंडम आया था उसके ऊपर आपने मुख्यमंत्री ऑफिस को लिखा कि इसके ऊपर आप अपना जवाब दीजिए। आपके पास सर अगर बता पाए कि क्या विकल्प है इस समय इस कानून को लेकर? मैं सोचता हूं अभी सेकंड विकल्प है आमने सामने बात करने की। जी। तो उसको समझ करके और कानून की दृष्टि से भी जो अच्छी तरह से संजीदे लोग हैं उनको बुला करके भी आमने सामने बिठाएंगे कि इस पॉइंट से क्या नुकसान हो रहा है, क्या इसको बदला जा सकता है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। जी। तो मैं सोचता हूं बैठ करके सभी दृष्टि से समझ करके उसको हल करने के लिए मैंने उनको बुलाने का भी है। मैं बुला करके ही आमने सामने बात करके भी करेंगे। चिट्ठी पत्री तो अपनी जगह चलती रहेगी, जवाब तवाब आता रहेगा, जी। वही एकमात्र हल नहीं है। बिल्कुल। उसके लिए बैठ करके भी डिस्कशन करें, वो अपना तर्क समझाएंगे, मैं अपनी बात समझाऊंगा और जरूरी होगा तो किसी डाउ पॉइंट ऑफ व्यू से भी एडवोकेट को भी साथ रख करके उसके बिंदुओं को समझने का प्रयास करें। एक सर जो बात होती है कि राज्यपाल को इस नजर से भी देखा जाता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। पिछले समय में विचारधारा एक अलग बात है कि दोनों अलग अलग पार्टियां, वहां पर भारतीय जनता पार्टी है, यहां पर आम आदमी पार्टी है, लेकिन इस बीच आप कहिए कि तलखी टकराव दोनों के बीच नजर आती है, स्टेट और सेंटर के बीच। आप उसको किस नजर से देखते हैं कि आपके ऊपर पंजाब को लेकर एक जिम्मेवारी डेफिनेटली है दोनों के बीच, क्योंकि पंजाब सरकार ये लगातार कहती है कि हमारे फंड्स रुके हुए हैं, हमारा आरडीएफ का पैसा है, हमारा एनएचएम का पैसा है, वो हमें नहीं दिया जाता। आपके पास भी ऐसी बातें पहुंचती हैं कि आप अपील कर दीजिए ऊपर कि सेंटर से पैसा आ जाए? देखो, निश्चित रूप से मैं जब से इस पद पे बैठा हूं जी, इस पद की गरिमा मेरी पार्टी लाइन से भी ऊपर है और मैं सोचता हूं मैं पार्टी लाइन को कभी इस पद के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करता हूं। जो स्टेट के हित में और राष्ट्र के हित में हो उसको ध्यान में रख करके काम करने का प्रयास करता हूं। मैं उस समय अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता नहीं मानता हूं। मैं इस संवैधानिक पद पर बैठा हूं, इसकी गरिमा को रखते हुए मुझे अपने काम को करना है नियमों के तहत। मैंने कोशिश की केंद्र सरकार से भी, जैसे बाढ़ के समय में आया था तो उस समय भी कोशिश की, जितना सहयोग की दृष्टि से बन सकता है उतना मैंने प्रयास किया है। तो मैं सोचता हूं कि विशेष करके यहाँ की नगरपालिका चंडीगढ़ के लिए तो मैं सरकार से काफी कुछ सहायता ला करके भी इनकी एक बार जो पोजीशन बहुत खराब थी उसको ठीक, लेकिन मैं सोचता हूं कि बैठना ही उसका साधन है। जी। और मैंने प्रयास भी किया कि आप अगर कोई ऐसी समस्या तो अपन साथ चल करके भी संबंधित मंत्री से बात कर सकते हैं कि हमारे को ये परेशानी है जी। तो क्या हो, तो प्रयास किया लेकिन इसमें कोई बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली कि हम साथ जाकर के किसी बारे में बात करके अपनी प्रदेश की समस्या को रख सकें। जी, मैं थोड़ा सा चंडीगढ़ के ऊपर भी आऊंगा सर। एक कॉमन इशू है इनफैक्ट हर जगह का, कानून व्यवस्था का। आप ने बहुत राजस्थान में जब आप सरकार में थे तो आपने इन चीजों को भी बहुत क्लोजली देखा है वहां पर। मैं ये जानना चाह रहा था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर भी आपने काम किया राजस्थान में। चंडीगढ़ और पंजाब में इस समस्या को आप किस तरह से देख रहे हैं? पंजाब में एक लंबे टाइम से गैंगस्टरिज्म की बहुत दिक्कत है और उसका असर अलग अलग राज्यों में है, वो चाहे राजस्थान भी हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो। इनफैक्ट चंडीगढ़ में पिछले कुछ समय में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर ग्रेनेड अटैक हो या कुछ और हो। आप इन सबको कैसे देख रहे हैं? देखो, निश्चित रूप से जो पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो धीरे धीरे चंडीगढ़ तक भी आ रही है। जी।
और वही गैंगवार जो है ना हमारे यहाँ भी कभी कभी प्रभावी होता है। तो मैं अपनी डीजीपी और सारी टीम के साथ बैठता हूँ। जी। जैसे अगर बाजार के बीच में 12 बजे कोई गोली मार के चला जाए तो हम सब लोगों के लिए सोचनीय विषय तो है। जी। हम ये कह करके कि वो निकल गया ये नहीं है कि हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है। तो हमने जो नाके थे उसको नाकों को थोड़ा सा मजबूत किया है, पुलिस की जो गार्डिंग है उसको भी थोड़ा सा टाइट किया है। जी। लेकिन अभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते 100%। मेरी उनसे बात होती है तो ये होती है कि कोई अपराध हो गया समझ में आ सकता है। जी। लेकिन हमारे पास आज की तारीख में इतने साधन हैं कि हमको 5 मिनट में हर चीज की घटना का जानकारी मिल सकती है। तो हम अपना पुलिस प्रशासन तब सफल मानेंगे कि आदमी क्राइम करा और हमारी बाउंड्री के अंदर ही उसको पकड़ करके हम सफल हो गए, तब जाकर के हम इसको बचा सके। बाद में तो ठीक है, कैमरों के द्वारा हम ढूंढते हैं, करते हैं, अपराधी तक पहुंच जाते हैं, अपराधी को पकड़ भी लाते हैं, उसमें तो सफलता मिली है। लेकिन मैं सोचता हूं कि अपराध होते ही हमारी टीम इतनी एक्टिव है तो हम कैसे उनको यहीं का यहीं बाउंड्री के अंदर ही दबोच सकता है। कोई आदमी गोली चलाकर पैदल चला जाए और गाड़ी में बैठ करके निकल जाए तो ये हमारे सबके लिए सोचनीय विषय तो है। आपको लगता है कि जितना टेक्नोलॉजी, आज हम एआई समिट में बात कर रहे हैं और चंडीगढ़ को बहुत अत्याधुनिक पुलिस के तौर पर भी देखा जाता है कि उस तरीके से पुलिस ने काम किया, चंडीगढ़ पुलिस ने, यहां पर सैकड़ों कैमरास लगे हुए हैं। लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि आप चालान काटने के लिए कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हो। आपको लगता है कि क्राइम को रोकने के लिए भी उस तरह से इस्तेमाल हुआ जैसे होना चाहिए था? मैं सोचता हूँ ये जो 3 कानून बनने के बाद जी, और फिर हमारे यहाँ से ही इन तीनों कानून के आधार पर जो कार्रवाई करने का जो काम है वो कम से कम समय में लगा। हमारा जो एक तरह से केस दर्ज होना और उसके बाद चालान पेश करने में, जितने भी एक्यूज हैं उनको पकड़ने में भी हमारी सफलता हुई। और मैं सोचता हूँ कि चंडीगढ़ और पंजाब की स्थिति हम दोषियों को सजा देने में भी देश से सबसे ऊपर है, ना लगभग 87% पर है। लेकिन अभी भी हमारे 2 क्राइम जो है ना, विशेष करके जो है ना आपका ये जो पोक्सो एक्ट के जो केसेज हैं उनमें थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं। और विशेष करके 489 का जो केस है दहेज का और ये जो सेपरेशन का, इसके कारण से इसमें अभी हमारी उपलब्धि जितनी अच्छी चाहिए उतनी अपनी नहीं है। तो वैसे मैं सोचता हूँ बाकी सब दृष्टि से, ये जो ड्रग की दृष्टि से हमारा जो परसेंटेज है वो लगभग 90 के आसपास पहुंच रहा है क्राइम का। और हमारे केस भी समय पे निपटने के लिए स्थिति में आए हैं। तो लेकिन अभी भी ये नहीं कह सकते कि हम कोई बहुत संतोषप्रद स्थिति में आ गए, पर इन ऑल अगर कंपैरिजन किया जाए तो देश के सजा दिलाने में जो राज्य आगे है उसमें हमारा चंडीगढ़ और पंजाब भी लगभग उसके आसपास चल रहा है। जी, मैं चंडीगढ़ से जुड़े 1-2 और सवाल लेना चाहता हूं। सर, एक जो ट्रैफिक की समस्या एक बहुत लंबे टाइम से है और जो चंडीगढ़ वाले हमें सुन रहे होंगे, यहां पर ट्रिब्यून चौक हमेशा से एक आप कहिए कि ऐसा पॉइंट बना रहा है जहां पर बहुत ट्रैफिक होता है, और मेट्रो को लेकर या फिर ट्रिब्यून तक एक फ्लाईओवर को लेकर वो फाइनल कुछ हो नहीं पाया। अभी अदालत के आदेश भी आ चुके हैं। ये कैसे व्यवस्था के ऊपर आप काम कर रहे होंगे? अदालत के आदेश पर तो मैं यहाँ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि ये समस्या केवल और केवल हम अकेले नहीं है जी, सभी लोग फेस कर रहे हैं कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं चंडीगढ़ में जहाँ ट्रैफिक बहुत ही एक तरह से जाम रहता है। कई बार लाइट ऑफ हो जाती है, फिर भी हमको रुके रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो उसकी समस्या के निदान के लिए हमने ओवरब्रिज बनाने के प्रस्ताव पिछले 6 सालों से जो पेंडिंग चल रहा था उसको किनारे पर लाने का प्रयास किया। इसी तरह से जो हाईकोर्ट से और पीजीआई से जो रोड जा रही है उसको हमने एलिवेटेड रोड लगभग 1.5 किलोमीटर का बनाने का फाइनल करके एक तरह से वर्क ऑर्डर दे दिया। लेकिन कोर्ट ने केवल और केवल ये बात कह करके कि इसमें बहुत पेड़ आते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए जो है ना हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैं सोचता हूं कि अब कोर्ट से आगे तो कुछ हम कह नहीं सकते, लेकिन हमें सोचते हैं कि मान लो हमको 100 पेड़ काटने हैं तो आप हमको 500 पेड़ लगाने के लिए, 1000 पेड़ लगाने के लिए पाबंद कर दो। अगर आपको तो लगता है कि नहीं तो पहले लगा करके फिर काम शुरू करो तो भी हम कर सकते हैं। अब जहां तक वो अंडरपास का जो है ना
1 किलोमीटर अंडरपास बनाना, 1.5 किलोमीटर अंडरपास बनाना जी। आर्थिक दृष्टि से हमको इतना महंगा होता है कि हम उसको इतने आसानी से अपने बजट से आसानी से कवर नहीं। मैं सोचता हूं कि केंद्र सरकार ने भी पैसा दिया और हमने भी दिया। जी। ये दोनों प्रोजेक्ट हमारे स्वीकृत थे, लेकिन दोनों इस कारण से अटक गए। उसके कारण से हम सोच रहे हैं कि इसका आगे क्या कानूनी प्रक्रिया में हमको और कहीं आगे प्रयास करना चाहिए, तो सोचेंगे उसके बारे में क्या करना। उम्मीद करते हैं सर कि कोई ना कोई चंडीगढ़ वासियों की ये हमेशा से डिमांड रही है कि कोई ऐसा वे आउट निकाला जाए ताकि चंडीगढ़ की खूबसूरती भी इफेक्ट ना हो और दूसरी तरफ समस्या का हल भी आ जाए। मेरा एक छोटा सा आखिरी सवाल सर, उदयपुर टू चंडीगढ़, सिटी ऑफ लेक्स टू सिटी ऑफ राउंड अबाउट्स, प्लैंड सिटी, कैसा महसूस करते हैं आप चंडीगढ़ में? यहाँ जब यहाँ की सड़कों पर निकलते हैं, यहाँ बहुत प्लैंड है सब कुछ। वैसे मैं नहीं कहूंगा, दुनिया का हर व्यक्ति कहेगा कि इससे खूबसूरत शहर कोई है नहीं। बिल्कुल। और मैं सोचता हूं कि शहर तो कई बने होंगे इसी तरह से, लेकिन उस पर कानून की इतनी ज्यादा दबाव नहीं है। उसके कारण से कई शहर अच्छे बने। जी। अब न्यू दिल्ली बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन उसके बाद भी उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो बदलता दिख रहा है। यहाँ कम से कम कानून की पालना थोड़ी सख्त होने के कारण से भी जो है ना वायलेशन के कारण से नोटिस बहुत जाते हैं लोगों को। इलीगल जो है ना कंस्ट्रक्शन करना संभव नहीं है। जी। तो इसकी जो स्थिति है वो आज भी सुंदर बनी हुई है और लोगों की कई बार ये मांग रहती है कि हमारी शहर की खूबसूरती को मेंटेन रखिए। उनकी बात कई सीमा तक सही लगती है, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये खूबसूरती के साथ अगर व्यापार और आर्थिक दृष्टि से हमारा शहर प्रगति नहीं करेगा तो एक तरह से ये शहर जो है ना ओल्ड लोगों का शहर बन करके एक तरह से रह जाएगा। जी। तो मैं सोचता हूं जहां तक इसकी खूबसूरती बचे वो हमारी पहली प्रायोरिटी, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों को व्यवसाय मिले ये भी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो उसका दोनों का जोड़ बिठाने का प्रयत्न कर रहे हैं और जो एरिया लाल डोरे से बाहर है उसके लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करें। जी। तो हमने कुछ प्रयत्न किया है कुछ समस्याओं को हल करने का, और जिन लोगों ने केवल और केवल वायलेशन अपनी बाउंड्री के अंदर मकान की बाउंड्री में किया है जी। उसमें तो आपको बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ा। किसी के 2 बच्चे हो गए, अब वो नया जगह तो खरीद नहीं सकता, जी। बच्चों की शादी हो गई, आखिर कहीं न कहीं उसी में से पार्टीशन करके उस बच्चे के लिए भी मकान तो देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमने कोशिश की है कि जो इन बाउंड्री में अर्थात जो बना हुआ मकान है उसके अंदर कुछ अगर उसने वायलेशन किया है तो उनको अधिक से अधिक एडजस्ट करें जिसके कारण से उसका परिवार चल सके। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का भी, और आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। जैस्मिन। Thank you so much, sir. Thank you so much for this insightful session. We are extremely grateful to our chief guest, Shri Gulab Chand Kataria ji, Governor Punjab, Administrator Chandigarh. जोरदार तालियां एक बार हमारे चीफ गेस्ट सर के लिए। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के सम्मान में। Like to call upon stage Mr. Braj Mohan Singh ji, News 18, editor News 18 Punjab, Haryana, Himachal, and Mr. Jagmeet Singh Jammu, Regional Head Network 18, to please come upon the stage and felicitate the chief guest, Shri Gulab Chand Kataria ji. जोरदार तालियां एक बार हमारे chief guest के लिए। Please put your hands together for our chief guest, Shri Gulab Chand Kataria ji,
कुछ कॉन्वर्सेशन सिर्फ ट्रेंड्स नहीं बदलती, वो पूरा फ्यूचर। They say the future doesn't wait for any invitation, it simply arrives. And it has arrived here tonight. Ladies and gentlemen, just look around yourself. It is just not an audience. It is the assembly of dreamers and doers, of scholars and soldiers, of builders and healers, and everybody who truly believes that one of the brightest days of the history of Punjab are yet to be written, and we all are going to write it together. Good evening, one and all. फाइन करती हैं। नॉर्थ इंडिया अब उसी मोमेंट के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ AI एंड टेक समिट। It simply arrives. And tonight, the future has arrived here. Ladies and gentlemen, just look around yourself. It is not just an audience. It is the assembly of dreamers and doers, of scholars and soldiers, of builders and healers, and everybody who truly believes that one of the brightest days of the history of Punjab are yet to be written, and we all are going to write it together. Good evening, one and all. I am Jasmine Kaur, your host for the evening, and it is my extreme privilege to welcome you all on the behalf of News 18 Punjab, Haryana, Himachal to News 18 Network, AI and Tech.